Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru. If I may ask you, why do you join a school? To become a student. And why become a student? To learn a subject. What subject? Be it history, geography, science, whatever. Why? So that you can earn a livelihood. So you joined a school to be a student, but did you join a school to always stay a student? That school will be a miserable place if it always keeps you a student. You had joined a school to be a student for some time, learn a subject, and then go earn your livelihood. So why do you become a Hindu or a Sikh or a Muslim? What is a Sikh? Sikh translated means student. Sikh means student. Why do you become a Hindu or a Sikh or a Muslim? So that you can learn the subject of life and then live life. Not for livelihood. Livelihood means of living. Live means you live. Now you attain the essence of life and you live it. So did you become a Sikh to continue to be a Sikh? Was it mandatory to become a Hindu or a Muslim? Yes, it is mandatory. But is it that you become a Hindu or a Muslim or a Sikh to continue to be a Sikh? A student? No, you joined a school to learn the essence of living, and you learn it and you pass out and you live. Otherwise, you're making yourselves miserable. A person who joins a school and never passes out is a miserable man. It's better not to join a school and roam around in the streets. Can you not wonder, can you imagine a colleague of yours, a student, classmate of yours who never passed? Never passed. He's still in the school only. Imagine how miserable would he be? This is what is happening to people. We die as students. We never pass. We never pass. So, essence of life stays hidden within us and we never blossom. Because the conviction was that I am born to be a Hindu. Well, fie on you. Durfitemu. Carry on being a Hindu. Carry on being a Muslim. You have become a Muslim to be a human. And a human is the highest creation in this entire ambit of galaxies. Human is the highest because human is the only flower. Human can blossom, nothing else. Everything else is made as it is. Sun will continue to be a sun. A lion will continue to be a lion. A goat will continue to be a goat. A worm will continue to be a worm. It can never evolve. Human can blossom. And the way is the school. The school which we join to study what is called aparavidya. Aparavidya, the world of the knowledge of the world. Aparavidya. And Paravidya, the school is called Hindu, Muslim, Sikh, Isai. This is a school. Both are schools. One is a school of Paravidya, one is a school of Aparavidya. So evolve. Know, join the school, know why have you joined. To pass out, not to stay in the school forever and
be a curse upon yourself and the society and all that there is. Evolve, get out of the school quickly. If you know that you have to keep passing exams and pass out, then it will be worth being a Sikh or a Hindu or a Muslim. Otherwise, you wasted life. Because you're born with a conviction that I want to be a devotee of so and so. Oh, well, devotee means a student, and thereafter the essence has been given to you as a prasad. Ikumkar has been given to you. Nirankar has been given to you. Now, Nirankar is everything. Nirankar is love. Love is silence. So whatever I tell you, you imbibe a few drops of it. You feel the taste of it. But दिन के काम में आप फिर भूल जाते हैं. काम में भूल जाते, फिर भूल जाते. क्या भूल जाते? What have you come into life for? To blossom. Blossom like Buddha. Blossom like Nanak. Blossom like Sri Satya Sai Baba. Sri Satya Sai Baba is a school. Buddha is a school. Nanak is a school. गुरुमुख मार्ग आखिए गुरुमत हितकारी, उसके जैसे बन जाना. That is the goal of a school. What does a teacher teach you? So that you know that subject and you carry on and you remember him that he was my teacher. So काम में आप भूल जाते हैं कि आप जिंदगी में आए क्यों थे. नदी नाव संजोग मेल मिलाया, होवनहार जो होग गुरु समझाया. गुरु ने क्या समझाया कि एक भव सागर बना दिया, एक नदी बना दी, भव सागर. उसमें आपको एक बोट दे दी, कश्ती दे दी. तो अगर आपको बोट भी मिल गई, भव सागर भी है, तो आपको अब चाहिए क्या? टू कीप बोटिंग? No, boat has been given to you to cross the Bhavasagar. And why would you not? Because boat has been given to you. Why would you not provide it? Somebody reminds you that you have not born to keep struggling within the boat and within the Bhavasagar, but to cross it, because beyond the river is your beloved. If you continue to sit in the boat, how would you reach the beloved? Don't get entrapped and engulfed and possessed by the boat. What is the boat? Boat is your body. Your body, your mind, your intellect is the boat. And you have to cross the sagar, the nadi. नदी नाव संजोग मेल मिलाया, होवनहार जो होग गुरु समझाया. गुरु ने बताया कि definitely you will cross the ocean. Somebody just needs to remind you that you have to cross the ocean. And disembark. बोट से तो उतरना ही पड़ेगा अगर दूसरी तरफ पहुंचना है. तो बोट में ही तो नहीं बैठे रह सकते. और ये बोट ऐसी है, मोह है. मोह मीन्स ये बोट छोटी सी बोट नहीं है, बहुत बड़ा जहाज है जिसके अंदर खाना पीना भी है, एंटरटेनमेंट्स भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, एनिमीज भी हैं, माता पिता भी हैं, फैमिलीज भी हैं. मगर ये एक कुटुंब नाल तेरे चले नाही, तिस नाल क्यों चित लाइए. ये बोट के अंदर सब कुछ है, मगर आप बोट में बैठने के लिए तो नहीं आए हैं. बोट हैज बीन गिवन टू यू एज एन उपकरण, एज अ करण. Karan means, Upkaran means, people who know Sanskrit, these words, Upkaran means an instrument. Boat is an instrument to cross the ocean. Upkaran. काम करते करते आप भूल जाते हैं बातें, और भूल ही जाते हैं कि काम होता क्या है. The concept of calm. Let me share the knowledge of the scriptures with you. काम क्या होता है? Calm is a sankalpa. Calm is a sfurna. Calm is a desire of the Almighty to do something.
What to do? What? To breathe. It's a calm. हाथ हिलाना, सोचना, बात करना, कुकिंग करना, चलना, सर्जरी करना, हॉस्पिटल, काम पे जाना, टीचिंग करना, एवरीथिंग इज काम. काम करते करते ही भूल जाते कि काम क्या होता है, काम का मीनिंग क्या होता है. हैव यू अंडरस्टूड, एवर थॉट ऑफ इट? हम समझते कर्म काम होता है. नेवर वंडर्ड काम क्या होता है. काम मीन्स लव, डजंट इट? हम कह देते हैं जहां काम है वहां राम नहीं. अरे तुमने काम को समझा नहीं, इसलिए वहां राम नहीं. काम मीन्स लव. काम मीन्स लव. काम doesn't only mean sex. काम means love. उसका distorted विकृत रूप is sex. Distorted रूप. And which would lead to krodh and lobh and moh and mad and matsar. What is the janani of all this? Is the true calm, the love. Causeless, unpolluted, unsullied love. Just a feeling of love. भगवान क्या है? Love. और भगवान करना क्या चाहता है? काम. काम क्या है? लव. Why has he made this world? सृष्टि बनाने को क्या बोलते हैं? भगवान का काम. भगवान ने क्यों सृष्टि बनाई? Out of love. Why? To get back love. And love is silence. Silence is एक ओंकार. गुरु क्या करता है? आपको ओंकार देता नहीं है. ओंकार तो आपके पास ही है ऑलरेडी, और तो आपको सिर्फ याद करवाता है कि लव तो आपके अंदर ऑलरेडी है, बस यू हैव जस्ट पोल्यूटेड इट. You have just not understood what is love. Begin the day with love, live the day in love, end the day with love, and you have attained moksha. You have attained God. You are love. Everything around you is love. There is nothing else in this world but love. कर्ता पुरुष बोलते हैं उसको, कर्ता पुरुष. सब कुछ वही करता है. क्या करता है? लव. वो लव करता है. उसको कर्ता कारक भी बोलते हैं. कर्ता कारक. और किस पे वो करता काम, क्या करता है वो काम? लव किसको करता है? मुझे, आपको, सबको प्यार करता है. तो कर्म कारक कौन हुआ? आप. किस लिए आपको प्यार करता है? ताकि आप उसको प्यार करें. सुसंप्रदान कारक कौन हुआ? लव. कर्म क्या हुआ? लव. जब आप उसको प्यार करेंगे तो आप कौन हो गए? कर्ता पुरुष. आप प्यार तो करो उसको, आप कर्ता पुरुष हो गए. जब आपको प्यार करना आ गया तो आप सत्य साई बाबा हो गए, आप नानक हो गए, आप बुद्ध हो गए. आपको जो पता चल गया कि आप प्रेम है, तो फिर आप में और सत्य साई बाबा में अंतर कहाँ रह गया? जब भी आपको पता याद आ गया. मुक्त्यय निर्विषयम स्मृतम. आपको याद ही तो आना है. आप ऑलरेडी तो हो ही. विकृत रूप बन गए हो प्रेम का. प्रेम का विकृत रूप इस काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर. एंड दैट्स ऑल सफरिंग. पर आप प्यार के रूप बन जाइए. हरे राम. प्यार में डूब जाइए. बस. ये फॉरबिडन एप्पल क्या खा लिया था आपने जो इतना सफरिंग शुरू हो गई है? वो हजारों साल पहले नहीं खाया था, अभी खाया है. अभी. फॉरबिडन एप्पल क्या है? कि प्रेम को विकृत कर दिया है. थोड़ी सी खटास, एक नींबू डलना चाहिए, बस एक नींबू का ड्रॉप. और फिर वार्मथ चाहिए इस दुनिया की सफरिंग. तो लोगों को भी देखो सफरिंग करते हुए, अपने अंदर भी एक
ड्रॉप ऑफ लेमन, सारा दूध फट जाएगा, सारा दूध फट जाएगा। चाहे कितने लीटर्स इकट्ठा रख लो, थोड़ी सी गर्मी दे दो, थोड़ा एक नींबू का बूंद डाल दो, अज्ञान डाल दो, इतना सा। अज्ञान मतलब भूल जाओ कि असली प्रेम होता क्या है। जस्ट लव, लिव इन लव, बस मोक्ष मिल गया, ज्ञान हो गया, कोई किताबें नहीं पढ़नी। पंडित क्या पढ़ता है? पंडित पढ़े माया मोह बाधा, ना बूझे भिख्या प्यार। वो ये किताबों में नहीं प्यार समझ आ सकता। प्यार तो आप ही के अंदर छुपा हुआ है, उसको बस गिव इट अ प्रिविलेज टू वेक अप, अलाउ इट टू वेक अप। उसको स्टिफल करके मत रखो, जागने दो उसको। कहीं सोए सोए ना जिंदगी बीत जाए। कहीं रोते रोते ही ना मर जाए। भर लो अपने आप को प्रेम से। प्रेम ही भगवान है, और भगवान कोई आदमी नहीं है, प्रेम भगवान है। दिन भर काम करते करते याद रखो कि काम ही तो कर रहा हूं ना, काम ही तो कर रहा हूं, प्रेम ही तो कर रहा हूं, और कुछ नहीं कर रहा हूं, कोई काम नहीं कर रहा हूं। सिद्धया असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये हार जीत के लिए नहीं काम कर रहा हूं, काम के लिए काम कर रहा हूं। कंपैरिजन या कॉम्पिटिशन्स के लिए काम नहीं कर रहा हूं, काम के लिए काम कर रहा हूं। पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूं, काम के लिए काम कर रहा हूं। काम मीन्स लव, प्रेम के लिए प्रेम कर रहा हूं बस। कर तो रहा ही नहीं कुछ भी, काम ही तो कर रहा हूं। कर्ता पुरुष हूं, कृत्स्न कर्म कृत, कुछ नहीं कर रहा हूं, बस प्रेम ही कर रहा हूं, और कुछ नहीं करना। यही आनंद है, यही मोक्ष है, यही ज्ञान है। शब्दों में नहीं ढाला जा सकता, क्योंकि है तो वो साइलेंस ना। जब प्रेम हो जाएगा तो बोल ना पाओगे, और जब बोलोगे भी तो प्रेम का ही इजहार होगा। कोई वितर्क, कोई विचार ना होगा, प्रेम का ही इजहार होगा। उस प्रेम में ही डूबे रहो, काम में ही डूबे रहो। हरे राम, हरे राम, हरे राम। ब्लेस योरसेल्फ, ब्लेस द इंटायर वर्ल्ड। कोई सेवा वेवा करने नहीं आए हो किसी की, प्रेम ही सेवा है। तंग करते हो सेवा वेवा करके किसी की, किसी को कहाँ जरूरत है लंगर लगाने की? आई एम सॉरी टू से दैट, और सबके पास अपना अपना खाना है, क्यों भीड़ इकट्ठी कर रहे हो? नो नो नो, कैरी ऑन डूइंग दैट, बट वेल, जो भी करो प्रेम से ही करो, काम से ही करो, काम ही काम है। पापा घर से जा रहे थे, उन बच्चों को बोला कि जो भी कोई अच्छा काम करेगा मैं उसको गिफ्ट दूंगा। 3 बच्चे थे, बड़े वाले तो वापस आए तो बड़े वाले से पूछा क्या अच्छा काम किया? उसने बोला आई हेल्प द ब्लाइंड लेडी टू क्रॉस द रोड। वेरी वेल, उसने उसको चॉकलेट दे दी। छोटे वाले बीच वाले से पूछा तुमने क्या किया? उसने आई ऑल्सो हेल्प द ब्लाइंड लेडी टू क्रॉस द रोड। सेवा की, मतलब सेवा की, ब्लाइंड लेडी क्रॉस द रोड। गुड, वेरी गुड, उसको भी चॉकलेट दिया। तीसरे से पूछा तुमने क्या किया? उसने बोला मैं तो खेलता रहा पापा, मस्ती में, मेरे को कोई टाइम नहीं मिला कुछ करने का, और कोई मिला नहीं जिसको कोई ज़रूरत थी, तो मैं अपना मस्ती में खेलता रहा, पढ़ाई की, खेलता रहा। वेरी वेल, चलो तुम खुश रहे, ये भी सेवा ही है। चलो उसको भी चॉकलेट दे दी। अब बड़े वालों को पूछता है कि तुमने क्या, तुमको ब्लाइंड लेडी कहाँ से मिल गई दोनों को? उन्होंने बोला एक ही थी वो ब्लाइंड लेडी, तो हम दोनों ने उसकी हेल्प की। ओ वेरी गुड, सो दोनों को हेल्प करने की क्या जरूरत है? एक भी तो कर सकता था, उसको तो ब्लाइंड थी, आप हाथ पकड़ते ले जाते दूसरी तरफ। वो कहता है ना, वो जाने को तैयार ही नहीं थी, हमने उठा लिया दोनों ने और सेवा कर दी इसकी। सो ऐसी सेवा तो मत करिए, जिसके पास खाना है उसको आप खाना खिला रहे हो।
भीड़ इकट्ठी कर रहे हो और आप प्राउड फील कर रहे हो कि मैंने लोगों को खाना खिलाया। ऐसी सेवा की क्या ज़रूरत है? आप अपना खेल जाइए तो सेवा हो गई, इससे बड़ी कोई सेवा है नहीं। अपने ही घर में खिले रहिए, पूरा दिन काम करते रहिए। काम, वो वाला दोनों काम, हाथों वाले भी, मुँह वाले भी और असली वाला काम भी। काम, प्रेम, प्रेम करते रहो, बस। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। सबको तो दुःख पहुँचा रहे हो और जाके किसी को लंगर लगा रहे हो और किसी को सड़क पार करवा रहे हो उठा के। हरे राम, इससे कोई सेवा नहीं होगी। हर एक अपना-अपना चल रहा है काम, बस आप खुश रहिए। हरे राम, यही ध्यान है, यही प्रेम है, यही आनंद है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे राम, 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 हरे राम। वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण,